Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to start chapter number 4, algebraic expressions and formulas. The first topic of this chapter is algebraic expressions. The combinations of algebraic terms, that is the variables and constants, मिलके अल्जेब्राइक टर्म्स बनती हैं. वेरिएबल्स यानी एक्स वाई जी ऑन कॉन्स्टेंट्स मीन्स रियल नंबर्स अंडर द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर कॉल्ड अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस. 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 7. And similarly 4xy plus 3 over x minus 9 and x cube plus square root of 2 times x square plus 5x minus 3 etc. are examples of algebraic expressions. Once again, the combinations of algebraic terms under the operations of addition and subtraction are called algebraic expressions. These are the examples: 5x square minus 3x plus 2 square root of x plus 2 divided by square root of x minus 7, comma 4xy plus 3 over x minus 9 and x cube plus square root of 2 times x square plus 5x minus 3 are different examples of algebraic expressions. After this, types of algebraic expressions. There are 3 types of algebraic expressions. Number 1, polynomial expressions, or simply we may say polynomials. Number 2, rational expressions, and number 3, irrational expression. So first of all, we are to explain the polynomial expressions, the algebraic expressions in which the variable oblique variables like x, y, z, t, etc. have non-negative integral powers. Exponents are called polynomial expressions. For example, 3x square plus 8x minus 5, comma x cube plus square root of 2 times x square plus 5x plus 3, comma 4 over x to the raised power minus 2 plus 3x minus 7, comma minus 3xyz, etc. These all are examples of polynomials. यानी पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स की जो पावर आती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में आती है, यानी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स आनी चाहिए. अब आप देखें यहाँ पे 4 ओवर एक्स टू द रेज पावर माइनस 2, जब हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बिकम 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7. सो इसका शुमार भी पॉलिनोमियल्स में होता है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट थिंग इज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल. The highest power of the variable or variables, in case having more than one variables involving in the given polynomial, is called its degree. Once again, the highest power, the greatest power of the variable involving in the given polynomial is called its degree. For example, 3x square plus 8x plus 5, it is a polynomial. The highest power of the variable, that is x, is 2, so its degree is 2. As its degree is 2, it is known as a quadratic polynomial. So it is a quadratic polynomial. Now, one more thing, as there are 3 terms, the different parts of the algebraic expression separated by the operations of addition and subtraction, not by division and multiplication. The different segments, parts
separated by the operations of addition and subtraction are called its terms. Now there are three terms. First term 3x square, second term is 8x, the third term is a constant term, that is 5. So it has three terms, so it is known as a trinomial. A polynomial having three terms is known as a trinomial. A polynomial having two terms is called binomial. A polynomial having one term will called monomial. A polynomial having four terms will called tetranomial, as in the next example. So having one term, monomial, having degree 1, linear. Now its coefficients are 3, 8 and 5. As you see that these are positive integers, so it is a polynomial on the set of positive integers, or you can say on the set of natural numbers, or you can say on the set of whole numbers also. यानी एक पॉलिनोमियल्स की चार मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, वन विद रिस्पेक्ट टू द डिग्री, वन विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ टर्म्स, और वन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल्स इन्वॉल्विंग इन इट, एंड वन विद रिस्पेक्ट टू द कोएफिशिएंट्स. यानी हम चार डिफरेंट तरीक़ों से एक पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं. तो अगर हम देखें इसका डिग्री के हवाले से तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. अगर हम टर्म्स के हवाले से इसको कैटेगराइज करें तो ये ट्राइनोमियल है, बिकॉज हैविंग थ्री टर्म्स, ट्राई मीन्स थ्री. और अगर हम इसके कोएफिशिएंट्स को देखें तो 3, 8 एंड 5 दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. और अगर हम इसके वेरिएबल्स को देखें तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल, दैट इज x. नेक्स्ट एग्जांपल इज 7/2 times x square yz minus 3/4 xyz plus 4z cube plus 11/7. Dear students, it is a case when there are more than one variable. Now there are three variables x, y and z. इसकी डिग्री फाइंड आउट करने का मेथड ज़रा डिफरेंट है. हम इनकी पावर्स को ऐड करेंगे. 2 + 1 + 1, the total power is 4. Here 1 + 1 + 1 it is 3. Here 3, और यहाँ पावर जो है वो 0 है, उसे हम काउंट नहीं करते. सो यू सी दैट द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स is 4. So the degree of this polynomial is 4. So its name is quartic polynomial. यानी अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है वो क्वार्टिक होगा, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर होगा, अगर डिग्री 2 है तो बायनोमियल होगा, सॉरी डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा, डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, और डिग्री 4 है तो क्वार्टिक, और अगर एक टर्म है तो मोनोमियल. इफ इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 टर्म्स, बायनोमियल. इफ इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स, trinomial. If it is consisting of 4 terms, it is a tetranomial. Now let's come to the variables involving. There are 3 variables x, y, z. Now let's come to the coefficients. Coefficients are 7/2, -3/4, +4 and 11/7. So all these are from the set of rational numbers, because there are integers as well as decimals. So it is a polynomial on the set of rational numbers. Dear students, the next topic is rational expressions. This is a second kind of algebraic expressions. The quotient px upon qx of two polynomials px and qx, and it is a fraction of two polynomials. Any one polynomial is in the numerator, the other polynomial is in the denominator, provided that, शर्त ये है बच्चों कि जो polynomial denominator में आ रहा है it should be non-zero, it should not be equal to 0, is called a rational expression. It is just like as a rational number, जैसे हम rational numbers को define करते हैं. Rational expression means the quotient, the fraction
px over qx of two polynomials px and qx, where qx not equal to 0 is called a rational expression. Now there are some examples of the rational expressions. First example, 2x plus 1 divided by 3x plus 8. इसके न्यूमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल है, दैट इज 2x plus 1, और इसके डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल है, दैट इज 3x plus 8. यानी px is equal to 2x plus 1 and qx is equal to 3x plus 8. The other example is 3x plus 8 divided by x square plus x plus 2. In the numerator there is a linear polynomial, but in the denominator there is a quadratic polynomial. यानी ये शर्त नहीं है कि न्यूमिनेटर में जो डिग्री है वही उसके डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, यानी डिग्रीज ऑफ द न्यूमिनेटर as well as degrees of the denominator, they can be same, they can be of different types. The third example is 3x divided by 2x minus 1 plus 8. This is another kind of a rational expression. 3x square plus 1 over x minus 5. इस तरह के एक्सप्रेशंस का बेशुमार भी रैशनल एक्सप्रेशन में ही होगा. और उसके बाद x square plus 6x plus 9 divided by x square minus 9. Here it is a quadratic polynomial. In the denominator there is also a quadratic polynomial, so it is also an example of a rational expression. X cube minus 2x square plus square root of 3 divided by 2 plus 3x minus x square. यानी न्यूमिनेटर में क्यूबिक पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. So it is another kind of rational expressions. So all these are different examples of rational expressions. After this, the third and the last kind of algebraic expression is irrational expressions. The algebraic expression in which the variables have their powers as decimals or fractions like 1 by 2, 1 over 3, 2 by 3, 3 by 2 या 1 whole 1 by 2, 5 by 3 etc. यानी इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स या तो स्क्वायर रूट में आए, क्यूब रूट में आ रही हो, या फोर्थ रूट में, या फ्रैक्शंस की फॉर्म में आए. जैसे कि यहाँ x की पावर जो है वो 1 है, ये 1 by 2 है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो x to the raised power 3 by 2 बन जाएगी, तो दैट इज़ अ फ्रैक्शन. सो इट इज़ एन इररेशनल एक्सप्रेशन. बाकी दो को हम नहीं देखेंगे और इसकी वजह से ये इररेशनल एक्सप्रेशन. सिमिलरली लुक हियर, यहाँ x की पावर 1 by 2 है, इट इज़ अ डेसिमल, इट इज़ अ फ्रैक्शन. और यहाँ x to the raised power minus 3 by 2 है, इट इज़ अ फ्रैक्शन पावर प्लस 7. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ एन irrational expression. Here 3 times square root of x, यहाँ x की पावर 1 by 2 है, it is a fraction power, plus 7 times x to the raised power 1 by 3, it is a cube root of x, or minus 7, so it is another kind of a irrational expressions. Let's come to the exercise 4.1. After having the definitions of rational expressions, irrational expressions, polynomials, now we are in a position to separate, to distinguish between the different kinds of algebraic expressions, whether these are polynomials, rational expressions or irrational expressions. Question number 1, part 1, 3x square plus 1 over x minus 5. Now I would like to explain you people in detail. It is not a polynomial. How it is not a polynomial? This is what I want to let you people understand thoroughly. 3x square, अब इस x को मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाऊंगा, यानी x टू द रेज पावर माइनस 1 बन जाएगा, क्योंकि नीचे इसकी पावर पॉजिटिव 1 है. और जब हम इसको ऊपर न्यूमिनेटर के साथ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 1
times x to the raised power minus 1 minus 5. So dear students, according to the definition of polynomial, तो हमने लिखा था कि ऐसा एक्सप्रेशन, such algebraic expressions in which powers of all the variables या सिंगल वेरिएबल, इनकी पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स में आनी चाहिए, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर आनी चाहिए. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ x की पावर जो है वो -1 है, दैट इज नेगेटिव इंटीजर. सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉलिनोमियल नहीं है, लिहाजा हमारा आंसर जो है वो नॉट पॉलिनोमियल का होगा. इसके बाद फर्दर देखिए इसको, 3x² फॉर योर मोर सेटिस्फैक्शन, कि अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो देन व्हाट काइंड ऑफ द एक्सप्रेशन इज इट. 3x² प्लस 1/x minus 5, take its LCM. So you see that its denominator is 1, its denominator is also equal to 1. So LCM is x. So it, after solving, it will become 3x cube plus 1 minus 5x. After rearranging, after writing in the descending order, it will become 3x cube minus 5x plus 1 divided by x. तो आप देख रहे हैं कि इसके न्यूमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल आ गया है जिसकी डिग्री जो है वो 3 है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसके डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी एक ही टर्म है, यानी इट इज़ अ मोनोमियल, और इसकी डिग्री 1 है. सो इट इज़ अ लीनियर मोनोमियल, इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टर्म. तो लिहाजा ये px ओवर qx की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है हमारा गिवन एक्सप्रेशन. सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे. तो हमारा आंसर था, सिर्फ क्वेश्चन था कि ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, वो था इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. लेकिन आपको सारा समझा दिया है कि अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर क्या है. तो फिर आप, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो देन एक्सप्लेन इट्स टाइप, तो आप कहेंगे कि इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन. यानी 3 किस्में होती हैं एक्सप्रेशन की, कि या तो वो पॉलिनोमियल होंगे, या वो रैशनल एक्सप्रेशन होंगे, या वो इररैशनल एक्सप्रेशन होंगे, और हो सकता है कि वो इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में भी ना आए, ये भी पॉसिबिलिटी है. लेकिन आपके सिलेबस में ये 3 कैटेगरीज ही आती हैं कि समटाइम्स दीज आर पॉलिनोमियल, समटाइम्स दीज आर रैशनल एक्सप्रेशन, एंड समटाइम्स दीज आर इररैशनल एक्सप्रेशन. Look part 2 of question number 1. 3x cube minus 4x² minus x times square root of x plus 3. So after solving for your satisfaction, for your understanding, 3x cube minus 4x² minus x times x to the raised power 1/2, यानी हमने स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है. स्क्वायर रूट ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल टू x to the raised power 1/2. So same basis, powers will be added and the base will remain unchanged. So 3x cube minus 4x² minus x to the raised power 1 plus 1/2 plus 3. So 3x cube minus 4x² minus x to the raised power 1 plus 1/2, taking LCM 2, 1 plus 2, 3/2. So x to the raised power 3/2 plus 3. Here वेरिएबल की पावर जो है वो एक फ्रैक्शन में आ गई है, यानी 3/2 इज अ फ्रैक्शन. सो ये पॉलिनोमियल नहीं है. पॉलिनोमियल के लिए शर्त है कि वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर्स में आनी चाहिए. जैसे कि 3 इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ 2 है इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, बट हेयर 3/2 है, ये इंटीग्रल पावर नहीं है, ये फ्रैक्शनल पावर है. इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं या हम इसको डेसिमल कहते हैं. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉलिनोमियल नहीं है. अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर क्या है. अब आप देखें कि 3x क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 3, यहाँ आप देख रहे हैं कि x की पावर जो है वो एक फ्रैक्शन में आ रही है. तो लिहाजा ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें तमाम वेरिएबल्स या किसी एक वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन में एग्जिस्ट कर जाए, और फ्रैक्शन मीन्स 1/2 आ जाए पावर, 3/2 आ जाए, 5/2 आ जाए, 2/3 आ जाए, क्यूब रूट आ जाए, स्क्वायर रूट आ जाए, 7th रूट आ जाए, 4th रूट आ जाए. तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम कहेंगे इररैशनल एक्सप्रेशन. तो ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन ये है
कि ये वाला अलजेब्रा का एक्सप्रेशन जो है ये इर्रेशनल एक्सप्रेशन की एग्जांपल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, it is x square minus 3x plus 2. We have to tell whether it is a polynomial or not. Dear students, आप देख रहे हैं कि यहाँ वेरिएबल्स की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर्स में आ रही है, यानी यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर जो है वो पॉजिटिव 1 है और यहाँ पावर जो है वो बेसिकली 0 आ रही है, यानी यहाँ आपकी जो पावर एग्जिस्ट कर रही है वो x टू द रेज पावर 0 है। तो अब आप देख रहे हैं कि पावर जो है दीज आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, सो इट इज अ पॉलिनोमियल। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 3 है इट इज अ पॉलिनोमियल। लेट्स कम फॉर द पार्ट नंबर 4, 3x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 और उसके बाद प्लस 8। नाउ डियर स्टूडेंट्स, it is not a polynomial. बेसिकली ये px ओवर qx की फॉर्म में है, तो अगर अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी कि हाउ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ px ओवर qx। डियर स्टूडेंट्स, टेक इट्स एलसीएम 2x माइनस 1। दिस प्रोसीजर इज फॉर योर मोर सेटिस्फैक्शन। आंसर इसका आपने यहाँ पे टिक कर दिया है। So 3x into 1 plus 8 times into 2x minus 1 after taking its LCM. So 3x plus 16x minus 8 divided by 2x plus minus 1. So 19x minus 8 divided by 2x minus 1. So you see that it has converted in px over qx, यानी ये आपने इसको क्वोशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया एंड qx नॉट इक्वल टू 0, और ये आपकी शर्त भी पूरी हो रही है कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर शुड बी अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल। यस इट इज 2x minus 1 is a non-zero polynomial, so it has been converted in the quotient form. So इसके न्यूमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल है और इसके डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल है, सो इट इज अ काइंड ऑफ ए, तो फिर क्या है ये, इट इज अ रैशनल एक्सप्रेशन, यानी ये पॉलिनोमियल नहीं है बल्कि एक रैशनल एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से आपने इनको अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने इनको मेंशन करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम लोगों ने बताना है कि जो एक्सप्रेशंस हमें दे रखे हैं उसने, इनमें से कौन कौन से जो हैं वो रैशनल एक्सप्रेशंस हैं। तो रैशनल एक्सप्रेशन के लिए अभी आपको इसकी डेफिनेशन भी बताई थी कि रैशनल एक्सप्रेशंस दे मस्ट बी इन द फॉर्म px ओवर qx, लेकिन शर्त है कि px भी एक पॉलिनोमियल हो और qx भी एक पॉलिनोमियल हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 टाइम्स के रूट x जो है ये बेसिकली बन जाता है 3 टाइम्स x टू द रेज पावर 1/2 और नीचे इसके 3 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5, ये बन जाता है 3x टू द रेज पावर 1/2 प्लस 5। तो आप देख रहे हैं कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है और ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये भी इर्रेशनल एक्सप्रेशन है और नीचे भी एक इर्रेशनल एक्सप्रेशन लगा हुआ है, क्योंकि वेरिएबल की पार्ट जो है वो फ्रैक्शन में आ रही है। तो लिहाजा इट इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। इसके बाद पार्ट 2, आपने सिर्फ इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। ये सारी वर्किंग जो है ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो कि ये क्यों रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। अब ये इर्रेशनल एक्सप्रेशन भी नहीं है क्योंकि नीचे भी आपका जो है वो एक इर्रेशनल एक्सप्रेशन है और ऊपर भी इर्रेशनल एक्सप्रेशन है, तो ओवरऑल हम इसको इर्रेशनल एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे।
उसके बाद पार्ट नंबर 2 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 divided by 2 plus 3x minus x square. Now dear students, look at the numerator. आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर के अंदर जितने भी वेरिएबल्स की पावर्स जा रही हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं. हाँ, नंबर जो है वो कोई स्क्वायर रूट में आ सकता है, लेकिन वेरिएबल स्क्वायर रूट में नहीं आना चाहिए. तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 से फ़र्क नहीं पड़ता. एक्स वाली टर्म जो है वो स्क्वायर रूट में नहीं आनी चाहिए. तो आप देख रहे हैं कि ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री 3 है, तो इट मीन्स का क्यूबिक पॉलिनोमियल है और 3 टर्म्स है इसमें. और नीचे भी एक पॉलिनोमियल है जबकि उसकी डिग्री जो है वो 2 है. सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो यानी आपका पी एक्स भी एक पॉलिनोमियल है और क्यू एक्स भी एक नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल है. तो लिहाजा इसका शुमार जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन में होगा. सो इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन. और इसके बाद सेकंड लास्ट आपका जो है दैट इज एक्स स्क्वायर. दिस इज नंबर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x प्लस 3. सो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फार्मूला है. अगर हम इसे सॉल्व करेंगे वो एक अलग इशू है, आगे क्वेश्चन में आएगा. तो अब आप देखें आपके न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल है, यानी पी एक्स भी एक पॉलिनोमियल है और क्यू एक्स भी एक नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. सो लिहाजा इसका शुमार भी इर्रेशनल एक्सप्रेशन में नहीं होगा बल्कि ये रैशनल एक्सप्रेशन में आएगा, क्योंकि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल्स हैं. सो इट इज़ कंसिडर्ड एज आ रैशनल एक्सप्रेशन. लास्ट 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3. सो डियर स्टूडेंट्स, अगेन इन द सेम वे, सो लुक एट द न्यूमरेटर. तो ये बेसिकली 2x टू द रेज पावर 1/2 है, नॉट अ पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल नहीं है. सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर 2x टू द रेज पावर 1/2 माइनस 3, नॉट अ पॉलिनोमियल. यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में पॉलिनोमियल्स नहीं है. पी एक्स भी पॉलिनोमियल नहीं है, वो भी एक इर्रेशनल एक्सप्रेशन है, और क्यू एक्स भी पॉलिनोमियल नहीं है, वो भी एक इर्रेशनल एक्सप्रेशन है. तो लिहाजा इसका शुमार किसमें होगा? नॉट रैशनल, नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन. ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है. बस यही हमने बताना था कि ये जो चारों पार्ट्स हैं इसमें से कौन कौन से रैशनल हैं और कौन कौन से इर्रेशनल हैं. सो द लास्ट वन इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन.